A very good afternoon, dear students, and let's start with the second part of your chapter number 5, Natural Vegetation and Wildlife. In the previous video, we have seen about the introduction of natural vegetation, in which we have discussed that natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has left undisturbed by the human for a long time. We have discussed that there are the various factors which are responsible for the natural vegetation, and we have discussed land, soil, climate, then sunlight and precipitation, right? Then we have discussed, which I told you that this question will come in your 5 marks question, and this is your types of natural vegetation, that you have to be describe the various types of natural vegetation. And we have discussed tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical thorn forest and shrubs, montane forest and mangrove forest, and in the each forest we have discussed about their rainfall, their location, what are its important, and in which are the flora and fauna is available in these plants and in these forests, and why these forests are important for us. So you have to be go through the previous video if you have didn't watch it, and please student make sure that you have to be go through this question, that is what are the factors for natural vegetation and types of natural vegetation. This is important question of this chapter. Now today we will start with your next topic, that is your wildlife, as the chapter name is natural vegetation and wildlife. So in this video we will discuss about your wildlife. In the introduction of the wildlife it is written that we have approx 90,000 that is 90,000 of your different animal species which consist of 13% of your world total. We have a different variety of fish, and we also know we have a different varieties of reptile and mammals in the India. The most important part that we have a different varieties of elephants, which you will found in the hot west forest of Assam, Karnataka and Kerala. मीन्स कि हमारे पास एलिफेंट्स की भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज़ हैं जो हमें असम, कर्नाटका और केरला में मिलेंगी. दिस इज़ फॉर योर वन वर्ड क्वेश्चन. वी हैव वन ऑन राइनासोर्स, जो आपको हमेशा आपने याद रखना है कि ये हमेशा इनकी पहचान जो होती है और इनकी मोस्टली जो लोकेशन होती है दैट इज़ स्वेपी एंड माशी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल. इनका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, मतलब आपको वन और राइनासोर नॉर्मली माशी एरियाज में ही पाया जाएगा. तो ये आपने याद रखना है असम एंड वेस्ट बंगाल में. एरिड एरियाज की तरफ अगर हम आ जाएं तो वी विल फाउंड इन द रन ऑफ कच्छ वी विल गेट योर कैमल्स एंड वाइल्ड एस, दीज हमें यहाँ मिल जाएंगे. देन वी हैव इंडियन बिसन, नीलगाय. दीज आर द सम ऑफ द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द एनिमल्स दैट वी हैव फाउंड इन इंडिया. ये उसका इंट्रोडक्शन है. मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ, वट एवर द क्वेश्चन कम इन योर एग्जाम, वाइल्ड लाइफ के ऊपर क्वेश्चन आएगा. हमेशा हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन दीजिए. अगर वाइल्ड लाइफ के ऊपर क्वेश्चन है तो एक हल्के सी 2 या 3 लाइंस में उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिए. ज्योग्राफी में इंट्रोडक्शन देने से बहुत ज़्यादा अच्छा एक यू कैन गेट अ गुड मार्क्स फॉर अ 5 मार्क्स क्वेश्चन में. तो हमेशा इंट्रोडक्शन दीजिए, राइट. नाउ देखिए तो यहाँ पे लिखा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन वर्ड क्वेश्चन अगेन, इम्प्लीमेंटेड इन 1972 इन इंडिया. मतलब एनिमल्स को मारना एक तरफ से अब ये क्राइम है, उसके लिए एक एक्ट पास किया गया था. Then India is the only country in the world that has both tigers and lion. सबको पता है, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़. Then lions जो हैं that is in Gir forest in Gujarat, and we have your tigers you will found in the Madhya Pradesh, Sundarbans of West Bengal and Himalayan region. यहाँ पर आपको ये tigers और lion मिल जाएंगे. Leopards too, that are the member of your cat family, जो आपको it's also one of the we can say the important animal we have, और ये भी आपको कहाँ पर हमारी इंडिया में अवेलेबल है. देन हिमालयंस में चले जाएं तो वहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड होने की वजह से वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर के एनिमल से वो अलग हैं, सबको पता है. जैसे आपको मैंने बताया था कि हमारे प्लांट्स जो हैं उनकी शेप और उनका करैक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है विद द चेंज इन लोकेशन, वैसे ही जो हमारे एनिमल्स हैं इनकी भी जो वैरायटी है, जो ब्रीड है, वो लोकेशन के हिसाब से अलग चेंज हो जाती है. जैसे आपने
आपने यहाँ पे लिखा हुआ है तिब्बतन एंटीलोप जो है, वाइल्ड शीप है, ये सारे एनिमल जो तिब्बतन में हमें मिल रहे हैं, कुछ रेड पांडा जो है जो हमें अलग जगह पे मिल रहे हैं। तो ये आपने इस चीज़ को याद रखना है कि लोकेशन के साथ एनिमल्स तो चेंज होंगे, कुछ फीचर्स कुछ वैरायटी जो है वो चेंज हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पर आपको ये मैप वर्क दे रखा है, प्लीज़ इस मैप वर्क को आपने बनाना भी है और इसको लर्न भी करना है। दिस इज़ योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विद द रेड कलर इज़ योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्टार यू हैव योर बर्ड सेंचुरी एंड ट्रायंगल इज़ योर नेशनल पार्क। तो आपने इसको अच्छे से बना लीजिए और इसको इम्पॉर्टेंट है ये, लाइक नेशनल पार्क दांचीगमा, रायगढ़, कॉर्बेट, धुआ, राजगढ़, ये आपके हैं मेन नेशनल पार्क्स। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता है सरिस्का, रथम्बोर, महानदी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर wildlife sanctuary. And same with your bird sanctuary, Badipur, Vidgara, Kaziranga, these are your wildlife sanctuary. तो इस मैप को प्लीज़ याद रखेंगे आप। उसके आगे इंट्रोडक्शन में आपको नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ इंट्रोडक्शन के नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं रिवर्स, लेक और कोस्टल एरियाज। इनमें भी आपको पता है यू हैव अ टर्टल, क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें हमारे बर्ड्स की, तो बर्ड्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्ड लाइफ इन इंडिया is colorful. Peacock, pheasants, duck, parakeets, cranes and pigeon, these are the some of the animals, birds जो हमारे यहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। Then we have selected our crops from the biodiversity environment, from the reserve of edible plants. We also experiment and selected some medical plants. The animal were selected for large stock provided by nature and milch animal. इस पैराग्राफ में आपको ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारे प्लांट्स हैं, हमारे एनिमल्स हैं, हम कैसे इनसे हेल्प लेते हैं हमारी और चीज़ों को बनाने के लिए। फिश जो है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, इंसेक्ट्स जो हैं वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ जो हमारे नेचर के ऊपर प्रोवाइड कर रखी है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ साथ ये हमारे इकोसिस्टम को कैसे चेंज करती हैं। दिस इज गिवन इन दिस पैराग्राफ। अबाउट 1300 प्लांट स्पीशीज आर एंडेंजर एंड 20 स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट। वो कह रहे हैं पर अभी नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमारे ये जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं या जो हमारे एनिमल्स हैं ये सारे अब एक तरह से ख़त्म होने की कगार पे हैं। तो उस चीज़ को सेव करने के लिए अब हमें क्या करना है। नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पर आपको बेटा एक क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, that is the main causes for the major threat to the nature and hunting by greedy hunters for the commercial purpose. Definitely हम सबको पता है hunting and gathering कितनी ज़्यादा होती जा रही है, pollution कितनी ज़्यादा है, industrial waste, acid deposits, ये सारी चीज़ें कितनी बढ़ती जा रही हैं जिस वजह से हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रही हैं। अब इस चीज़ के लिए नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन, अब इस चीज़ को रोकने के लिए जो ऊपर प्रॉब्लम्स हैं हमारी, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द मेनी स्टेप्स। नाउ दिस इज़ योर आंसर। फर्स्ट, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपने पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेटअप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना। सबको पता है कि हमारे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए गए हैं जिसमें हमें प्लांट्स और एनिमल दोनों को सेव करके रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपल, देन अचम कमर, अमरकंटक, दीज ऑल आर योर बायोस्फीयर रिजर्व्स, राइट। ये आपको यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, इनको लर्न करिए। एटलीस्ट एनी 5 तो बेटा लर्न करने ही पड़ेंगे। देन उसके बाद आपका सेकंड है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस दी जा रही है बॉटनिक गार्डन में। गवर्नमेंट जो है उनको हर तरीके से हेल्प कर रही है फ्रॉम 1992 की कैसे हम अपने प्लांट्स को प्रॉपरली सेव करके रख सकें। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन, ये सारे आपके स्टार्ट किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को बचाया जा सके। 103 नेशनल पार्क एंड 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं उनको सेटअप किया गया है ताकि और ज़्यादा हम इसको अपने फ्लोरा एंड फोना को सेटअप कर सकें। 4 पॉइंट्स हैं और ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है दैट व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स एंड व्हाट द गवर्नमेंट are taken a step to protect our flora and fauna, right। और 1 वर्ड के लिए आपने कोई भी 18 बायो रिजर्व्स है कुछ उसमें से लर्न कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट आपकी ये एक्सरसाइज है एंड ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। और प्लीज़ इस चैप्टर में मेन
कंटेंट जो आपने कवर करना है दैट इज योर टाइप्स ऑफ योर नेचुरल वेजिटेशन, दैट इज दिस पार्ट। ये विद दिस मैप वर्क आपने अच्छे से रेडी करना है, और ये जो आपने ये है 5 मैंने आपको बताए हैं फॉरेस्ट हैं, इनको आपने रेडी करना है, राइट। ओके,